ನಮಸ್ಕಾರ, ಐ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇದೀಗ ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್. ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಕ್ರಮಣ ಭೋಗಿ ಆಚರಿಸಿದ ಮಂಡಳಿ. ಸ್ಲಂಗಳ ಮೇಲೆ ದುಷ್ಟರ ಕಣ್ಣು ಬಿದ್ದಿವೆ ಎಂದ ಹೋರಾಟಗಾರತಿ ಮೇಧಾ ಪಾಟ್ಕರ್. ಭದ್ರತೆ ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ. ನಾನು ರಶ್ಮಿ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಹಾಮಾರಿ ಕೊರೋನಾ ಹಾಗೂ ರೂಪಾಂತರಿ ವೈರಸ್ ಒಮಿಕ್ರಾನ್ ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ಆರ್ಭಟ ಶುರು ಮಾಡಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ದೇವರ ಅದ್ದೂರಿ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಜಾತ್ರೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಜಾತ್ರೆಗಳ ಜಾತ್ರೆಯಂತೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಗಿರುವ ನಮ್ಮ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರೆ ನಮ್ಮ ಈ ನೆಲದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಹಾಗೂ ದೇಸೀಯ ಸೊಗಡನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುವ ಈ ಜಾತ್ರೆಯು ಸಮತೆಯ ಸಿದ್ಧರಾಗಿ ಬಾಳಿದ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮನ ಜೀವನ ಕ್ರಮವನ್ನು ಅಡಕವಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಆಚರಿಸುವುದು ಈ ಜಾತ್ರೆಯ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಜೀವನದ ನೋವು ನಲಿವು ಎರಡನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಕಾಯಕವನ್ನು ನಿಷ್ಠೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಕಪಿಲ ಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ಸೋನಲಿಗೆಯ ಸಿದ್ದರಾಮನ ಮಾತು ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ದಾರಿದೀಪವಾಗಿದೆ. ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ಸೊಬಗಿನ ಜೊತೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ವೈಭವ ಈ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮೇಳೈಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇರಿದಂತೆ ನೆರೆಯ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದಲೂ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಜಾತ್ರೆಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರೈತ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೋನಲಿಗೆಯ ಸಿದ್ದರಾಮ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಈ ಮಹಾಮಾರಿ ಕೊರೋನಾನಿಂದಾಗಿ 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಜಾತ್ರೆ ಮಾಡಲಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿಯಾದರೂ ಮಾಡುವ ಹುಮ್ಮಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಕೂಡ ಮಹಾಮಾರಿ ಕೊರೋನಾದಿಂದ ಜನರು ತತ್ತರಿಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ರಮಣ ಜಾತ್ರೆಯನ್ನು ಕೇವಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೊಂದಿಗೆ ನೆರವೇರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಿಜಯಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸ್ಲಂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘಟನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಪರ ಸಂಘಟನೆ ವತಿಯಿಂದ ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೋರಾಟಗಾರತಿಯಾದ ಮೇಧಾ ಪಾಟ್ಕರ್ ರವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಠಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ವಿಜಯಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸ್ಲಂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘಟನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಪರ ಸಂಘಟನೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೋರಾಟಗಾರತಿಯಾದ ಮೇಧಾ ಪಾಟ್ಕರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಸ್ಲಂನಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದು ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿನ ಫಾದರ್ ಮತ್ತು ಸಿಸ್ಟರ್ ಎಲ್ಲರೂ ರಂಗಿನ ಮಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಎಂಡಿ ನಜರ್ 2 ಸ್ಲಂಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ 95 ಸ್ಲಂಗಳು ಇದ್ದಾವೆ. ಸ್ಲಂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿ ಮೂಲಕ ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ರ್ಯಾಲಿಯ ಮೂಲಕ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದೆಯೂ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ನಾನು ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಲಂನ ಕೆಳಗಿನ ಭೂಮಿ ಏನಿದೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ದುಷ್ಟರ ಕಣ್ಣು ಬಿದ್ದಿದೆ. ಅವರ ಸ್ಲಂಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಲು ಸ್ಲಂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಯ್ದೆ 1970 ಅವರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಖಾಸಗಿ ಭೂಮಿ ಮಾಲೀಕನ ಕಣ್ಣು ಬಿದ್ದರೇನಾಗುತ್ತೆ? ಇದನ್ನ ರಂಗಿನ ಮಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಮಹಿಳೆಯರ ಶೌಚಾಲಯ ಕೂಡ ಒಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಲಂ ಗಡಿ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಳತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಅದು ಮಹೀಂದ್ರರವರ ಪರಿಹಾರ ಇದೆ. ಅದು ಅವರ ಭೂಮಿ ಅಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ಕೆಡವಿದ್ದಾರೆ. ಶೌಚಾಲಯ ಉಳಿಸೋಕೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಹೋರಾಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. सिस्टर शोभा ताई, अकरम भाई सबके साथ
हम लोग रंगीन मस्जिद और एमडी नगर 2 स्लम्स में गए थे। 95 स्लम्स जो विजापुर में हैं, उनके हक की बात स्लम अभिवृद्धि समिति के द्वारा बहुत सालों से चल रही है और उस समय हमने बहुत बड़ी रैली के द्वारा येडियुरप्पा सरकार के सामने भी बात रखी थी और उसके बाद सिद्धरामैया और हर सरकार के सामने बात रखते हुए यहाँ का कार्य चल रहा है। आज हमने देखा कि एक एक स्लम के नीचे की जो जमीन है उस पर कुछ गीधों की नजर पड़ गई है। जिन स्लम्स को डिक्लेयर किया गया, स्लम डेवलपमेंट एक्ट है 1970s का है, लेकिन उन पर भी अगर कोई बाजू में रहने वाला प्राइवेट लैंड ओनर अगर नजर डालता है तो क्या होता है, ये बात हमने रंगीन मस्जिद में देखी है। महिलाओं का शौचालय तोड़ दिया गया और स्लम बोर्ड ने जो नापती की अभी कुछ दिन पहले, उससे यह साबित हुआ है कि वो जो महेंद्र कर परिवार है उनकी वो जमीन नहीं है जहां वो शौचालय खड़ा है। अब एक शौचालय बचाने के लिए अगर महिलाओं को लड़ना पड़ रहा है, जिनमें दलित महिलाएं भी है, तो ये तो SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट के तहत अपराध है। पूना में महाराष्ट्र के ऐसी ही एक बस्ती भीमनगर, नाम से ही आप समझेंगे वो दलित बस्ती, आधी बस्ती को बसा दिया और आधी बस्ती को छोड़ दिया और उनका जो बचा हुआ शौचालय है, जो बचे हुए परिवारों के लिए बेहद जरूरी सुविधा है, उसको तोड़ने के लिए बार बार अधिकारी भेजते गए मेयर साहब पूना के, लेकिन आखिर में हम सब लोग उसमें पड़े। हमारा जो घर बचाओ घर बनाओ आंदोलन है उसकी वहां यूनिट बन गई। बंबई में 75,000 घर तोड़े थे तब यह आंदोलन बना था, बस्तियां फिर बसाई थी। तो ये भीमनगर बस्ती में पूना के जो अत्याचार हो रहा था उसको कानून के तहत आज पूना के महापौर मेयर साहब के खिलाफ केस दर्ज हो चुकी है और शौचालय बच गया है। हमारा मानना है रंगीन मस्जिद का शौचालय भी बचना चाहिए। बचाने के लिए महिला शक्ति ही काम करेगी। ये आज महिलाओं ने वहां संकल्प लिया है, जहां अकरम भाई, शोभाताई गायकवाड़, रफीक भाई और फादर और सब हाजिर थे। वकील साहब भी केस लड़ रहे हैं। बाजू में एक काका कारखानीस नाम के व्यक्ति को सरकार ने दी हुई जमीन थी, अच्छे कार्य के लिए जमीन दी थी, दलितों के लिए, महिलाओं के लिए एक कारागृह जैसा बनाने के लिए, और कारागृह जैसी एक बिल्डिंग बनी है, पर वो सही में जेल नहीं है, एक संस्था है। लेकिन आज वो संस्था किसी राजनेता के हाथ में चली गई जो आज सत्ता के पद पर बैठे हैं। तो जो स्लम डिक्लेयर्ड है वहां बोर्ड लगा हुआ है, 64 घर है, साफ सुथरे हैं, पक्के मकान बहुत से बन चुके हैं। उन घरों को उजाड़ने की क्यों सोच रही है सरकार? सरकार सोच रही है ये कहते हुए कि वो काका कारखानीस जी की जमीन है, जबकि उनकी जो दीवार है उसी से मालूम पड़ता है कि उनकी जमीन दूसरी है और वो जमीन सरकार के छोटे छोटे बराक जैसे बंगले बनी हुई है। अगर इनको वहां घर बना के दे तो बात अलग है। बिना वैकल्पिक घर दिए हुए बेघर बेरोजगार भी होना पड़ता है, ये मंजूर नहीं। से बंद घर अभी बनेंगे, नया कंप्यूटर का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया है, लेकिन आज तक तो भारत के घर हमारे निर्माण मजदूर बनाते हैं। तो ये सब श्रमिकों की बस्तियों को न उजाड़ते हुए उनको हक देना, और ये हक देना चालू किया है। इसीलिए आजू बाजू के मालिक अब वो उस पर आक्रमण करने का अगर सोच रहे होंगे तो यहाँ के पुलिस प्रशासन का हम केवल पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड जैसे राज्यों के चुनाव को मद्देनजर न रखते हुए, किसानों के मंजिल को मद्देनजर रखते हुए आगे कैसे चलेगा, ये हमको 15 तारीख को तय करना है। पर किसानों के साथ साथ खेत मजदूर भी आज अपनी मजदूरी सही नहीं पाते हैं, तो फिर उनको शहर में आकर ही बसना पड़ता है। किसानों को भी छोटे छोटे शहर में आकर बसना पड़ता है और सालों तक एक पीढ़ी निकल गई, उसके बाद उनके घर तोड़ने की साजिश होती है। ये बहुत ही बड़ा अन्याय है, ये संविधान के खिलाफ है, ये न्याय के खिलाफ है। इसलिए कानूनी और मैदानी दोनों लड़ाइयां लड़ने का संकल्प आज विजापुर के स्लम के महिलाओं ने, युवाओं ने, बुजुर्गों ने लिया है।
जिसका हम स्वागत करते हैं। हम जन आंदोलनों के राष्ट्रीय बॉर्डर पर ही प्रोटेस्ट नहीं था, केवल प्रोटेस्ट तो पूरे देश में था। बीजापुर के लोग भी प्रोटेस्ट करते थे। हमारे संयुक्त किसान मोर्चा में 550 संगठन का समन्वय रहा है और हमारी महिलाओं का योगदान भी बहुत बड़ा रहा है। मैं महिला सुरक्षा समिति की अध्यक्षा भी रही हूं। तो 40,000 महिलाएं वहां पहुंच गई थी पिछले साल 8 मार्च को। आज हम महिला किसानों को, महिलाओं का प्रमाण मात्रा खेत मजदूरों में भी सबसे अधिक है, पशुपालकों में महिलाएं हैं, मछुआरों में महिलाएं हैं, वनोपज पर जीने वाले आदिवासियों में महिला तेंदुपत्ता से लेकर महुआ तक, चिरौंजी तक इकट्ठे करती है। तो हम महिलाओं को तो ऐलान करने वाले हैं कि 8 मार्च के रोज महिला किसानों का, महिला मजदूरों का अधिकार आप स्थापित करके दिखाए, तो ही शराबबंदी होगी देश में और तो ही जमाबंदी भी होगी जमीन की और महिलाओं को भी किसान क्रेडिट योजना का लाभ मिलेगा। नहीं तो कुछ स्थान सम्मान नहीं मिलता है। पर इस किसान आंदोलन ने महिलाओं का स्थान और सम्मान बढ़ा दिया है। ट्रैक्टर पर बैठकर पंजाब से ट्रैक्टर लेकर महिलाएं दिल्ली तक पहुंचती रही है। उग्राहा जी के साथ जो महिलाएं हजारों की तादाद में टिकरी बॉर्डर पर बैठी थी, उनकी हत्या की गई ट्रक डालकर। ये क्यों हो गया? क्योंकि महिलाओं को कुचलना था। लेकिन महिलाओं की शक्ति आसानी से कुचली नहीं जाती, चाहे वो शहर के स्लम में हो, चाहे वो किसान मजदूर आंदोलन में हो। तो आज संयुक्त किसान मोर्चा का आंदोलन कैसे आगे बढ़ने वाला है? एक बड़ी जीत के बाद भी आगे बहुत सारे मुद्दे बाकी हैं। एमएसपी का कानून तो होना ही चाहिए। किसी भी राज्य में आज स्वामीनाथन आयोग के आधार पर एमएसपी नहीं मिलती है। केवल आप पैडी की बात ले लें तो पूरे देश में कुछ सालों में 24 लाख करोड़ किसानों को कम दी गई है दाम पैडी की। इतनी लूट, इससे कौन अपनी कमाई कर रहे हैं? ए सभी कॉर्पोरेट्स के नाम गिने आप, तो वही कमाई कर रहे हैं। रोज की हजार करोड़ रुपए की जिनकी कमाई है, वो किसानों के प्रोडक्ट्स 2, 4, 6 रुपए किलो में लेते हैं और 40, 60, 80 रुपए किलो में बेचते हैं। वो फल हो कि सब्जी हो। तो हर प्राकृतिक उपज को सही दाम मिलने वाला कानून चाहिए ही। हमारा जो अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय सबसे पहले बना 2017 में 250 संगठनों का, उसमें फिर दूसरे अलायंस से समन्वय जोड़कर संयुक्त किसान मोर्चा बना 26 नवंबर 2020 से, जो आंदोलन संविधान दिवस पर शुरू हुआ। हमने 2 कानून लोकसभा राज्यसभा में 2017-18 से डाल के रखे। उसमें एमएसपी कानून का मसौदा भी है। कोई सोचने की जरूरत नहीं है, फिर भी इन्होंने कमेटी बनाई। मोदी सरकार चाहती नहीं है एमएसपी देना। अगर एमएसपी मिलेगा तो किसान आत्मनिर्भर हो जाएंगे। आप आत्मनिर्भर भारत कह रहे हैं, आत्मनिर्भर किसान तो बनाओ, आत्मनिर्भर गांव तो बनाओ। किसानों की हत्या है व्यवस्था से हो रही, वो क्यों होने दे रहे हैं? वो क्या आलसी है? उनके पास पैसे की पूंजी नहीं है, लेकिन प्राकृतिक पूंजी के बिना कोई जी सकता है? ऑक्सीजन के बिना तड़प तड़प कर लोग मर गए। अनाज के बिना 3000 बालक रोज कुपोषित होकर मरते हैं। आत्महत्याएं भी उसी कारण होती है कि खाने को नहीं, न्यूनतम सुविधा के लिए पैसा नहीं है। ये सब जो गैर बराबरी है उसको मिटानी है, तो हमें समाज को भी प्रबोधित करना पड़ेगा। आज हम लोग यहाँ के कौन से इंस्टीट्यूशन में, एएसपी कॉलेज ऑफ कॉमर्स में बात रखेंगे। बीजापुर के सभी बुद्धिजीवियों को भी श्रमजीवियों से जोड़ना जरूरी है। और पूरे देश भर में आज लेबर भी जो लड़ रहे हैं, श्रमिक, वो उनके भी 29 कानून वापस लिए हैं सरकार ने। 44 में से 29 कानून जो आजादी आंदोलन के बाद बने। मेरे पिताजी भी श्रमिक संगठन का ही काम करते रहे। जिस दिन जेल से निकले थे आजादी आंदोलन में 16वें वर्ष में साल उम्र में, उस समय से तो हमने देखा है कि कैसे मजदूरों को बोनस के लिए भी लड़ना पड़ता है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम वो 29 कानून जो वापस लिए हैं उसको वापस लाने के लिए भी लड़े। और किसान मजदूरों ने एकत्रित होकर लड़ना चाहिए। और मजदूरों में संगठित श्रमिकों के साथ साथ असंगठित श्रमिक जिनको कहते हैं, वो असंगठित नहीं है, वो संगठित है, पर वो असुरक्षित रखे गए हैं बिना पेंशन प्रोविडेंट के, तो उनको भी लड़नी है। तो आगे की दिशा अभी 15
जनवरी के रोज सिंघू बॉर्डर पर जो हमारी मीटिंग होगी उसमें ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಾಗರಿಕ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಶಾಸಕರು, ಮಾಜಿ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಹಾಗೂ ಗೃಹ ಸಚಿವರಾದ ಎಂಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ರವರ ಹಾಗೂ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಅವರ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಭದ್ರತೆ ನೀಡುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೂಲಕ ಗೃಹ ಸಚಿವರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಶಾಸಕರು, ಮಾಜಿ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಮತ್ತು ಗೃಹ ಸಚಿವರಾದ ಎಂಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ರವರ ನಿವಾಸದ ಎದುರು ಸಚಿವರ ಕುಮ್ಮಕ್ಕಿನಿಂದ ಸುಳ್ಳು ಆರೋಪ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಅಸಂವಿಧಾನಿಕ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಎಂಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ರವರ ತೇಜೋವಧೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು ಅವರ ಪ್ರತಿಕೃತಿ ದಹನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಪ್ರಚೋದನಕಾರಿಯಾಗಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದುದನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಶಾಸಕರು, ಮಾಜಿ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಮತ್ತು ಗೃಹ ಸಚಿವರಾದ ಎಂಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಹಾಗೂ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವರ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಭದ್ರತೆ ನೀಡುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ನಾಗರಿಕ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೂಲಕ ಗೃಹ ಸಚಿವರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್. ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಕ್ರಮಣ ಭೋಗಿ ಆಚರಿಸಿದ ಮಂಡಳಿ. ಸ್ಲಂಗಳ ಮೇಲೆ ದುಷ್ಟರ ಕಣ್ಣು ಬಿದ್ದಿವೆ ಎಂದ ಹೋರಾಟಗಾರತಿ ಮೇಧಾ ಪಾಟ್ಕರ್. ಭದ್ರತೆ ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ. ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಐ ನ್ಯೂಸ್, ಉತ್ತಮ ಹೇಳಿಕೆಗಾಗಿ.